Hello, dear student. Welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a question that was asked in IGNOU MA Economics for course code MEC 001. Okay. Question is here. This question is related to monopolist. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस टर्म एग्जामिनेशन इग्नू एमए इकोनॉमिक्स में आ चुका है 20 नंबर कैरी दिस क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स इट वाज आस्क्ड अंडर सेक्शन ए। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन से फर्स्ट आई रीड आउट द क्वेश्चन। आ मोनोपोलिस्ट ऑपरेट अंडर टू प्लांट ए एंड बी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट्स इज गिवन बाय टू इक्वेशन and where x representing unit of output for each plant, so you produced by each plant. If the price of product is also given in the form of equation 396 minus 4x square, calculate overall marginal cost and profit maximizing output in each plant. First information given in this questions, marginal cost of these two plants is given in the form of equation first, and price of product is also given, and we are told to find out overall marginal cost and profit maximizing output in each plant. ठीक है, एक मोनोपोलिस्ट है जो दो प्लांट उस को ऑपरेट कर रहा है ए और बी, जिसका कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, दो ठो है प्लांट ए और बी का, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये दिया गया है। ठीक है, तो मोनोपोली में ये कंडीशन होता है कि प्लांट वो मोनोपोलिस्ट है कि मोर देन वन प्लांट पर भी काम कर सकता है, लेकिन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, तो इसका सलूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले वाइटल इंफॉर्मेशन है हमारा जो दिया गया है गिवन डाइट। तो MCA, that is the marginal cost for plant A, is given here in the form of equation 360 minus 14x minus 2x square, and MCB, that is the marginal cost for plant B, is given in another equation 310 minus 15x minus x square, and price of product, that is P, is given in the form of equation which is 396 minus 4 x square, 396 minus 4x square, 3 इंफॉर्मेशन गिवन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन फॉर अ मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर मोनोपोली कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट under monopoly occur at a point where marginal cost equal to marginal revenue, that is equilibrium या profit maximizing condition, profit maximizing condition under monopoly। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोली करते हैं, जो ऑपरेट करता है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं। ठीक है, MR इक्वल टू MC, MR स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, MC स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट। ये है, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं दो प्लांट हैं, दोनों का मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, लेकिन MR नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ P दिया गया है, प्राइस कर सकते हो, एवरेज रेवेन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको TR टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका जैसे ही टोटल रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो ये यील्ड करेगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हम दिखा रहे थे।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट MR. In order to have MR, we need to get TR. Then differentiating TR with respect to output, definitely we can get MR, that is marginal cost. P equal to 396 minus 4x square. 396 minus 4x square TR, that is price into output, P into X. Substituting the value of P here, 396 minus 4x square times X, multiplying this term inside the bracket, we can get 396x minus 4x to the power 3. जब हम TR गेट कर चुके हैं तो it is a very easy to calculate MR, that is marginal revenue MR. That is, we need to take the derivative of TR with respect to output, that is X. Very simple. MR equal to 396 minus 12x square. Okay. And MCA is a given in these questions. 360 minus 14x minus 2x स्क्वायर. ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन दिया गया. हम यहां पर एक MCB लिख लेते हैं, दोनों लिखना ही पड़ेगा. MCA equal to 360 minus 14x 2x square. MCB 360, sorry, MCB is a given 310 minus 15x minus 15x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन अंडर द मोनोपोली MR इक्वल टू MC. ठीक है, फॉर प्लांट ए, हम प्लांट ए पर पहले वर्क करेंगे. ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे. For plant A, MR equal to MCA. This is the profit maximizing condition under monopoly. ठीक है, profit maximizing condition under monopoly. ठीक है, MR इक्वल टू MCA. MCA इसलिए लिए कि प्लांट ए का हम सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट MR equal to MCB for plant B. So first concentrate on plant A. So what value we got for MR? 396 minus 12x square, and MCA value is given in this question. So here 360 minus 14x, 360 minus 14x माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है, सभी को शिफ्ट करते हैं एक साइड, LHS साइड. 396 minus 12x square
ये सारा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 360 प्लस 14x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x, तो फर्स्ट प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर दैट इज माइनस 10x स्क्वायर। वेरी सिंपल। 12 रुपीज आपका कर्ज है जिसमें 2 रुपया आप चुका रहे हैं, तो स्टिल आप 10 रुपया कर्ज में। 14x प्लस 14x 360 that is minus 360 96 360 minus 360 36। ये प्लस 36 होगा क्योंकि 396 रुपया आपके पॉकेट में 360 रुपया आप माइनस में कर चुका है, तो स्टिल यू हैव 36 इक्वल टू 0। -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो 10, -1 क्यों लेंगे कॉमन, आप ले सकते हैं -2 ले लें तो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा 0, तो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0 90। तो इसको तोड़ना बहुत टफ होगा, डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, ये पहला वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम प्राप्त किया, अब ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। -2 जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -18। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ac प्लस 2 है। अब सारा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। -b तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर -4a इक्वल टू 5, c इक्वल टू -18। ठीक है, 2 इंटू a। ये नीचे वाला 5 2 जा 10, ये प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 7 जब 49 प्लस में होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ऑब्वियसली होगा, 20 एंड 36। 49 36 409। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन जो यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 49 प्लस 360 तो आएगा 409 बाई 10। अब इसका अंडर रूट आप कीजिएगा तो 20.22 आएगा, लेकिन हम यहाँ फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन हम 20 लेके चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ +20 हम कर देते हैं बाई 10। अप्रोक्सीमेटली हम ले चल सकते हैं, ये कैलकुलेशन को लेने से कम करना है, इसमें हाईली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। 7 + 20 पहला प्लस वैल्यू ले रहे हैं और दूसरा वैल्यू 7 - 20 बाय 10, तो ये 27 बाय 10 -13 बाय 10। अब ये ऑब्वियसली आएगा 2.7 और ये आएगा -1.3। तो ये वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू should be and negative value should be ignored because output cannot be negative. तो only x equal to positive value
This is the profit maximizing output for plant A equal to 2.7 यूनिट्स। तो एक पार्ट हम बना लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर प्लांट ए इक्वल टू 2.7। पहला काम हो गया। अब हम मूव करते हैं प्लांट बी में। तो सिमिलरली सारा कंडीशन वही रहेगा। अब यहाँ एम आर इक्वल टू एम सी बी से हमको इक्वेट करना है। और आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप यू आर अलाउड टू bring कैलकुलेटर इन योर एग्जामिनेशन हॉल फॉर पेपर 1 and 3। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड में आप ले जा सकते हैं। ईयरली या हॉल टिकट के पीछे या आगे लिखा रहेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में। तो अब फॉर प्लांट बी करेंगे। अब यहां कर देंगे एम सी बी। तो एम आर इक्वल टू क्या है, 396 माइनस 12x² इक्वल टू एम सी बी का वैल्यू हमने वहां लिख दिया है 310 माइनस 15x x²। ठीक है, अब इसको इधर हम शिफ्ट कर देंगे सारा को एलएचएस साइड में। 396 माइनस 12x² माइनस 310 प्लस 15x प्लस x² इक्वल टू 0। ये 11 हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। जैसे आपका 12 रुपया कर्जा है, जैसे -12 है और वहां प्लस x² जुटेगा तो -11x² प्लस 15x, और ये घटकर हो जाएगा प्लस 86। बात वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन होता है। यानी 396 है, चाहे 396 रुपया आपका कर्ज है। अगर आप 310 रुपया दे रहे हैं तो आपके पास स्टिल आप सब्ट्रैक्ट करोगे 86 होगा। अब यहाँ भी -1 कॉमन ले लेंगे तो 11x² माइनस 15x माइनस 86 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये -1 उधर जाके क्या हो, आरएचएस साइड में डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। 11x² माइनस 15x माइनस 86। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तोड़ेंगे उसी तरह फॉर्मूला से है। a इक्वल टू 11, b इक्वल टू -15, c इक्वल टू -86। फॉर्मूला इज द सेम, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac by 2a। Substitute the all value, -15 प्लस माइनस -15² माइनस 4a इक्वल टू 11, c इक्वल टू -86। 2 into a। ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस माइनस 225 प्लस 44। कैलकुलेशन थोड़ा सा 4 into 11 आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो होगा 37 84 22। अब ये हम यहाँ ले जा रहे हैं। x इक्वल टू 15 प्लस माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4009 बाय 22। ये आ रहा है किससे। अब इसका आप एलसीएम लोगे, सॉरी
स्क्वायर रूट इसका वैल्यू आएगा आपका 63 आएगा, 63/22। आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना। 15 + 63 अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई रख सके। 15 - 63/22 ये आएगा वैल्यू 78/22 और इसका वैल्यू आएगा -48/22। इसका 3.5 आएगा और इसका आएगा -2.1। तो दिस नेगेटिव वैल्यू is ignored because output cannot be negative. So this is the profit maximizing output for plant B equal to 3.5 units. XB equal to 3.5 units. ठीक है, तो पहला पार्ट तो बन गया। अब दूसरा है कि हमको क्या करना है, ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा MCA, फिर MCB विद द हेल्प ऑफ XA। XA रिप्रेजेंटिंग profit maximizing output for plant A and another XB representing profit maximizing output for plant B। तो सबसे पहले MCA का हम कैलकुलेशन करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट A प्लस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट B। That is overall marginal cost MC equal to MCA plus MCB. MCA 360 minus 14x minus 2x स्क्वायर। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर प्लांट ए का हम लोगों ने निकाला 2.7। तो सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 360 minus 14 into 2.7 minus 2 into 2.7 स्क्वायर। 360 37, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 37.8 माइनस 2 इंटू इसको 2 बार करेंगे तो 7.29। 360 माइनस 37.8 माइनस 14.58। 360 माइनस ये दोनों ऐड होकर 52.38 और ये दोनों घटा दोगे तो आ जाएगा 307.62। अब MCB को हम कैलकुलेट करेंगे और MCB में हमारा क्या है 310 माइनस 15x माइनस x स्क्वायर। तो x आपको XB यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर प्लांट B इक्वल टू 3.5 हम लोगों ने निकाला है। तो 310 माइनस 15 इंटू 3.5, ठीक है, माइनस 3.5 स्क्वायर, ठीक है। तो 310 माइनस 15 into 3.5 52.5 minus 3.5 into 3.5 equal to 12.35 25। 310 by adding these two terms 64.75 equal to 245.25। overall marginal cost
उसको हम एम सी कहेंगे। एम सी इक्वल टू एम सी ए प्लस एम सी बी। ठीक है, दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। एम सी बी का वैल्यू यहाँ, सॉरी यहाँ है, एम सी ए का वैल्यू यहाँ है। तो पहला एम सी ए 307.62 प्लस 245.22, आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 552.87। This is the overall marginal cost. Overall marginal cost I have calculated, and profit maximizing output equal to 2.7 units. Profit maximizing output for plant B equal to 3.5 unit. Overall marginal cost equal to 552.87. These three things are asked to calculate under this question. I hope everybody got the concept I discuss under this video, and thanks for watching my video till. Jai Hind.